Good morning, students. We are studying chapter 6, banking in the macroeconomics. Functions of central bank we studied in the last class, and I told you to read the difference between the central bank and commercial bank. Hope you have read. We will read it now. Differences are central bank. Central bank is the apex bank, the bank of all the banks in the country. All commercial banks function under the control of the central bank. It accepts deposits from the commercial bank and advances loans to them, but it does not deal with the general public. सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से डीलिंग करता है, जनरल पब्लिक का कोई अकाउंट सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई में नहीं हो सकता. Commercial bank is that financial institution which accepts deposits from the general public and offers loans to the people for purpose of consumption and investment. कॉमर्शियल बैंक का रिलेशन होता है डायरेक्ट कस्टमर्स से एंड जनरल पब्लिक से. उनसे वो डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, उनको लोन देते हैं एंड लोन्स आर गिवन फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. सेकंड इज central bank regulates the supply of money besides being the principal source of money supply in the economy. Central bank is the principal source of money supply, means it issues loans and also it regulates the supply of money, as you all know. A commercial bank only contributes to the supply of money by way of credit creation that we have already studied. Commercial bank supply of money में part लेता है by way of credit creation. Central bank is a custodian of foreign reserve, forex reserve in the country. It conducts managed floating to regulate exchange rate of the domestic currency. Central bank is the custodian of foreign exchange. ये हमने पढ़ा था functions में, और वो managed floating भी करता है, जिसके बारे में आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था. A commercial bank is not a custodian of foreign exchange of the country. However, it deals in the sales and purchase of foreign exchange for the purpose of profit. Commercial bank may sell and purchase foreign exchange for earning profit, but it is not the custodian. Custodian means final accounting सारे forex की इंडिया में आरबीआई रखता है, commercial bank नहीं रखता. The central bank is a note issuing authority. It is a currency authority of the कंट्री. मीन्स सारी जितनी भी करेंसी इश्यू होगी कंट्री में वो सेंट्रल बैंक करेगा. कॉमर्शियल बैंक इज नॉट ए नोट इशूइंग अथॉरिटी, इट इज नॉट ए करेंसी अथॉरिटी. सेंट्रल बैंक के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती. द सेंट्रल बैंक फोकसेस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी. सेंट्रल बैंक का एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, बट कॉमर्शियल बैंक का एम होता है ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. What is the significance of centralized cash reserve with central bank, HOTL? Two observations need to be noted in this context. क्वेश्चन है कि सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व जो सेंट्रल बैंक के पास होता है, आपको समझ में आया होगा, मैंने CRR आपको एक्सप्लेन किया था. कैश रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक के पास कॉमर्शियल बैंक को पैसा जमा करवा के रखना पड़ता है एज ए परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट. उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व. तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? उसकी पहली सिग्निफिकेंस है सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व इनेबल द आरबीआई टू ऑफर फाइनेंशियल हेल्प टू द कॉमर्शियल बैंक ड्यूरिंग इमरजेंसी. इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एकोमोडेशन बाय द आरबीआई. बैंक्स गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशन और फाइनेंशियल हेल्प इन टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. तो जितना भी आरबीआई के पास सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व है वो किसके लिए है? इमरजेंसी टाइम के लिए. अगर किसी बैंक को, जैसा कि हमने पढ़ा था, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अगर कोई बैंक डूब रहा है या कोई वो बैंक बंद हो सकता है तो आरबीआई उसकी मदद करती है, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है और पब्लिक का विश्वास कभी भी बैंक से नहीं हटे, ऐसा ऑब्जेक्टिव आरबीआई का होता है. तो फाइनेंशियल एकोमोडेशन यानी कि कॉमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सेकेंड रीजन है centralized cash reserve
enable the RBI to exercise control over the commercial bank. कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने के लिए भी ये काम में आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीआरआर की रेट को बढ़ाएंगे तो ज्यादा पैसा कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा। इससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन दो चीजों पर डिपेंडेंट है, एक तो कैश रिजर्व, एक दूसरा कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा कैश रिजर्व आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा तो अपन ने जो पढ़ा था एक्सेस कैश उसके पास कम हो जाएगा और वो कम लोन दे पाएगी। बिकॉज दीज रिजर्व डिपेंड ऑन सीआरआर fixed by RBI in India, and by varying the CRR, the RBI can increase or decrease the credit creation capacity of the commercial bank, और इसके जरिए RBI कॉमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। इंक्रीज कैसे करेगा? सीआरआर की रेट को कम करके। अगर सीआरआर कम हो जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा कैश रहेगा लोन देने के लिए, और अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा, if we increase CRR, then credit creation capacity will reduce, because now commercial banks will have to deposit more cash with RBI. Accordingly, money supply in the economy is regulated. So we have studied two significance of centralized cash reserve. First significance is RBI provides financial accommodation to the commercial banks who are in need, and second is the cash reserve is used to control the credit creation capacity of commercial banks. Now our next topic is control of money supply or credit supply by the central bank RBI in India. सेंट्रल बैंक कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करता है, कैसे मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है? द सेंट्रल बैंक एडॉप्ट वेरियस मेजर्स to control the supply of money in the economy. Largely, these measures relate to credit supply by the commercial bank. These are broadly classified as quantitative instruments and qualitative instruments. तो आरबीआई के पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं to control the credit in the market. Here, credit supply means money supply. क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कंट्रोल करना है। कैसे करते हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के जरिए। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ फिगर होता है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो, उसका एक फिक्स परसेंटेज होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, इन सब का एक क्वांटिटी होती है, एक परसेंटेज होता है, इसलिए इन सबको हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और qualitative instruments are those in which there is not any figure, by only suggestions and by advices RBI controls commercial banks and controls their credit creation capacity. Following is a brief description of these instruments. It may be noted that these instruments are used to decrease the supply of money when there is inflationary spiral in the economy, and to increase the supply of money when there is deflationary spiral in the economy. So you have to remember, when there is inflation means rise in prices, and prices rise due to rise in aggregate demand, and aggregate demand rises due to increase in supply of money. कहने का मतलब यह है कि जब लोगों के पास ज्यादा मनी होता है तो वो ज्यादा डिमांड करते हैं, और ज्यादा डिमांड करने से ऑल ओवर कंट्री की एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो कंट्री में महंगाई बढ़ती है, क्योंकि स्टॉक उतना है नहीं। अब अगर ज्यादा डिमांड करेंगे एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर तो क्या होगा? उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। और इन्फ्लेशनरी स्पाइरल को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ऐसे होता है डिफ्लेशनरी स्पाइरल। डिफ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब होता है कि एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड जब कम होगी एग्रीगेट सप्लाई से तो प्रोड्यूसर को नुकसान होगा। प्रोड्यूसर का जो
गुड्स है, स्टॉक है, वो बिना बिका हुआ रह जाएगा। तो ये सिचुएशन भी कंट्री की अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे स्लो डाउन आता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, प्रोड्यूसर डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो जीडीपी कम हो जाएगा और उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो कि आप लोग जानते हैं। तो क्या होगा, जब डिफ्लेशनरी स्पाइरल होगा तो गवर्नमेंट को, आरबीआई को एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? आरबीआई क्या करेगी उस सिचुएशन में, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को बढ़ाएगी, क्योंकि लोगों को जब ज्यादा लोन मिलेगा तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा और कंट्री में जो सिचुएशन हो रही है डिफ्लेशनरी स्पाइरल की, वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इसीलिए जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई ऑफ मनी को कम करती है, और जब डिफ्लेशनरी स्पाइरल होता है तो सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करती है। इसी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। एक और बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में जो आरबीआई पॉलिसी बनाती है उसको बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी, और डिफ्लेशन के दौरान जो मनी पॉलिसी बनाती है आरबीआई उसको बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी। क्योंकि इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशन में आरबीआई सभी रेट्स को बढ़ा देती है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब की रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। सीआरआर और एसएलआर को भी इंक्रीज कर दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी। डियर मतलब महंगाई, महंगा। और चीप मनी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी व्हेन देयर इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड कम है, लोगों के पास पैसा कम है, इसलिए मनी पॉलिसी को चीप करना पड़ेगा, मतलब सारी रेट्स को कम करना पड़ेगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट मार्केट से मिल सके और कस्टमर एग्रीगेट डिमांड बढ़ा सके। नाउ there is an issue, the CBSE has deleted some portions of this chapter from quantitative instruments, which I have given you a clue, I have given you a brief description about it, but now RBI has removed some points from our course, so you may cut down it by pencil. From page number 157, bank rate has been deleted. Page number 158 and 159, both pages are deleted, means open market operation, repo rate, reverse repo rate, now these are not in our course. And in page number 160, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio and margin requirement, these are not in our course. But in deletion, CBSE has written that control of credit by these has been cut down. So I am giving you a brief description of these things, that what is bank rate, what is reverse repo rate, what is repo rate, मैं सिर्फ उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इनसे कैसे कंट्रोल किया जाता है वो हम नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज इट हैज बीन डिलीटेड बाय द CBSE. I am studying the first paragraph of bank rate, page number 157. Bank rate refers to the rate of interest at which the RBI lends money to the commercial bank. It relates to instant loan requirement of the commercial bank. So all of you know that commercial banks take loan from RBI, and the rate at which RBI provides loan to commercial banks, it is known as bank rate. Rest we will ignore. Second is open market operation. Open market operation refers to the sale and purchase of securities in the open market by the RBI on behalf of the government. As we have already read under the functions of RBI, that RBI is the agent of government. And why RBI is agent? Because RBI purchases and sells the securities of the government. Now what are the securities? Securities are, like you have studied, you know what are debentures and bonds. Just like this, government also issues documents to take credit from public. That instruments are known as securities. So these securities of government are sold and purchased by RBI. RBI is the agent of government. And one of the example of government securities are treasury bills, that you will study in business studies also. National savings certificates, etc. By selling the securities in the open market, RBI soaks liquidity, and by buying the securities, RBI releases liquidity.
That's again the portion which has been deleted, but I have read, so I am telling you. By selling the securities to the public, liquidity is soaked, means public का पैसा हमारे पास आ जाएगा. And by purchasing securities again from the public, public का पैसा वापस public के पास चला जाएगा. तो ये सब गवर्नमेंट क्यों करती है? टू कंट्रोल द क्रेडिट. तो इससे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये पोर्शन डिलीट हो चुका है. थर्ड इज रेपो रेट. रेपो रेट इज आल्सो द रेट ऑफ क्रेडिट बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक. But bank rate and repo rate are different. Repo rate is actually the rate of discounting. Now, what is discounting? That is also studied by you in class 11. We discount the bill receivable, you know, when we take the money against bill receivable from the bank in advance, and bank charges discounting charges from it. I hope you remember. So, just like these, commercial banks also discount their securities from RBI. And RBI give advance to commercial bank on behalf of security. The rate charged by RBI on such credit is known as repo rate. The rate at which RBI offers short period loans to the commercial bank by buying the government securities in the open market is called repo rate. This language is like the discounting. Securities are with commercial banks. Commercial banks have securities of government, and they provide securities to the RBI as a lien, as a discounting, and against these securities they took money from RBI. In fact, it is a repurchase rate. एक तरीके से repurchase कर लिया RBI ने, उनसे securities खरीद लिया एडवांस में, उनकी मैच्योरिटी डेट बाद में है, उसको वो securities ले लेता है RBI और उनको पैसा एडवांस में दे देता है. जाहिर सी बात है, इसके बीच में वो उनसे कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, उसी इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट. A repurchase agreement is signed by both the parties, stating that the securities will be repurchased by the commercial bank on a given date at a predetermined price. वो securities commercial bank RBI से वापस ले लेगा और उनको rate of interest चुका देगा. ठीक है. फोर्थ है रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? इसमें RBI पैसा लेता है कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट लेता है और उनको बदले में इंटरेस्ट देता है. इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. और इसमें भी बीच में सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको भी अपन रेपो रेट कहते हैं, इसको रीपरचेज रेट भी कहते हैं, रिवर्स रीपरचेज रेट. द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स रीपरचेज रेट. इन दिस केस, रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज, stating that the securities will be repurchased on a given date at a predetermined price. Reverse repo rate allows the RBI, allows the commercial bank to generate interest income. Commercial bank को इससे इंटरेस्ट मिलता है. मैंने आपको बताया पहले भी, RBI कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट लेगा, बदले में उनको सिक्योरिटीज देगा और उसको इंटरेस्ट भी देगा जब वो पैसा वापस लौटाएगा. कैश रिजर्व रेशियो we have already studied. It refers to the minimum percentage of a bank's total deposits required to be kept with the RBI. It is fixed by the RBI and is varied from time to time to regulate the supply of money in the economy. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है. इसको अपन बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मैंने आपको बताया था कि आरबीआई को अपने पास कैश में रखना पड़ता है, सॉरी कमर्शियल बैंक को. Every commercial bank is required to maintain a fixed percentage of its assets in the form of liquid assets called SLR. The liquid assets include cash, gold, and unencumbered approved securities. The rate of SLR is fixed by RBI and is varied from time to time. इसके बाद का पोर्शन डिलीट हो चुका है. तो SLR का मतलब है कि टोटल असेट्स में से कितना परसेंट कमर्शियल बैंक को अपने पास कैश में रखना पड़ेगा. कैश, गोल्ड और अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज तीनों ही लिक्विड एसेट्स होती हैं, इनमें वो रख सकते हैं. अब आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब यह है कि इसमें कोई निश्चित कोई सर्टेन परसेंटेज डिसाइड नहीं की जाती. इसमें बस आरबीआई कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है, यू मस्ट कंट्रोल द क्रेडिट और यू मस्ट रिलीज द क्रेडिट. These are those instruments of credit control which focus on select sectors of the economy. These instruments are used to increase or decrease the supply of money to select sectors of the economy.
These are those sectors which are the principal source of instability in the economy. Broadly, the qualitative instruments are placed in three categories as under. सेलेक्टेड कैटेगरीज को कंट्रोल किया जाता है इसके जरिए। इसके अंदर और पॉइंट्स आते हैं, उसमें सेलेक्टेड कैटेगरीज होती हैं। सेलेक्टेड कैटेगरीज का मतलब है कि पर्पस ऑफ लोन देखा जाता है और पर्पस ऑफ लोन के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा लोन आरबीआई ऑर्डर देती है कि किसको कम देना है और किसको ज्यादा देना है। तो जिस लोन से ज्यादा महंगाई बढ़ने की संभावना है तो वहां पर कम लोन दिया जाएगा। जैसे स्पेकुलेशन एक्टिविटीज के लिए कम लोन देंगे क्योंकि उससे एकदम से बहुत डिमांड बढ़ जाती है। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का भी पोर्शन हट चुका है अपने सिलेबस में से, इसका सिर्फ मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जब आप बैंक से लोन लोगे तो आपका बैंक आपसे कितना मार्जिन लेगा। मार्जिन का मतलब है कि जैसे बैंक ने आपको 10 लाख का लोन दिया, 10 लाख की सिक्योरिटी लिया आपसे, गिरवी रखा, तो 10 लाख के बदले में आपको बैंक पूरे 10 लाख का लोन नहीं देगा, उससे कम लोन देता है। तो अगर बैंक 30% कम लोन दे रहा है तो 30% कहलाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। जितना आप सिक्योरिटी जमा कराते हो उसमें और लोन के अमाउंट में कितना डिफरेंस है उसको बोलते हैं अपन मार्जिन रिक्वायरमेंट। द मार्जिन रिक्वायरमेंट refers to the difference between the current value of the security offered for loan called collateral and the value of loan granted. For example, you mortgage your house worth rupees 1 crore with the bank for a loan of rupees 80 lakh. So here in this example margin requirement is 20 lakh. अब जाहिर सी बात है जब बैंक को कंट्रोल करना होगा क्रेडिट को तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी, और जब कंट्रोल नहीं करना होगा, क्रेडिट ज्यादा देना होगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे। नेक्स्ट इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, जो कि डिलीट नहीं हुआ है, यह हमें पूरा पढ़ना है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट क्वोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है कि अलग अलग बिजनेस का परसेंटेज फिक्स कर देते हैं कि कौन से बिजनेस के लिए आपको कितना % लोन देना है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। एज आई टोल्ड यू, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज यानी कि सट्टा लगाना। सट्टा लगाने में क्या होता है कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन नहीं होता, ओनली वर्चुअल ट्रांजेक्शन चलता है। आप लोगों ने सुना होगा कई मार्केट में, कमोडिटीज मार्केट में भी स्पेकुलेशन होता है, ट्रेडिंग जिसको कहते हैं। आप लोगों के कई फैमिली मेंबर्स में कोई करता होगा, तो उससे क्या होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसलिए उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो क्रेडिट रेशनिंग का यही मतलब है कि सेलेक्टेड सेक्टर्स को कम लोन दो और कुछ सेक्टर्स को ज्यादा लोन दो। The RBI fixed credit quota for different business activities. Quota means proportion, amount. The commercial banks cannot exceed the quota limit while granting loans. This restricts the supply of money in the economy and inflation is controlled. तो इससे क्या होता है कि सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि हमने उन लोगों को लोन नहीं दिया जो ज्यादा डिमांड बढ़ा रहे थे। On the other hand, rationing of credit, if already in practice, is withdrawn to increase the supply of money. This controls credit. तो अगर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट लगाया गया है, इट मीन्स हम क्रेडिट कंट्रोल करना चाहते हैं। और अगर हम क्रेडिट को वापस रिलीज करना चाहते हैं, मतलब हम डिफ्लेशन में चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा उधार मार्केट में कॉमर्शियल बैंक दे, तो हम इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा लेंगे। तो अगर हम क्रेडिट रेशनिंग को अप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर अप्लाइंग इट टू रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन, और अगर हम उसको हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो इट इज टू इंक्रीज द क्रेडिट क्रिएशन। ओके, आज इतना ही पढ़ेंगे हम, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू। आप लोगों को होमवर्क करना है वो आप करिएगा, सारे नोट्स भी आपको बनाने हैं जैसा कि मैंने पढ़ाया है।